सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल में। और अब तो 2022 शुरू भी हो चुका है, तो कमर कस लें और आंसर्स करने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि जितने आंसर करोगे आप उतनी ही ज्यादा श्योरिटी बनती जाएगी आपके सफल होने की यूपीएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following statements about the office of whip are correct? Statement 1. The office of whip has been established by rules of business in each house of parliament. Statement 2. Only the ruling party is allowed to have a whip in each house of parliament. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, and D. neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements regarding the Constitution of India are correct? Statement 1. It is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. 2. It lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. 3. It expresses the aspirations of people about creating a good society. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 and 3 only, या फिर D. 1, 2 and 3 all. आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1. If a bill passed by state legislature endangers the position of the state high court, the governor must reserve the bill for a consideration of the president. Statement 2. If a bill sent by the governor for the reconsideration of the state legislature is passed again without amendments, the governor is under no constitutional obligation to give his assent to the bill. Which of the statements given above are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, या फिर D. neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following factors given below affect the climate of a region? 1. Pressure and wind system. 2. Continentality. Then 3. Ocean current. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 and 3 only, या फिर D. 1, 2 and 3 only. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the given statements with respect to UN Convention to combat desertification are incorrect? 1. It is the only convention stemming from a direct recommendation of the Rio Conference Agenda 21. 2. It is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. 3. The Global Environment Facility serves as a financial mechanism for UNCCD. आपके ऑप्शंस हैं A. 2 only, B. 3 only, C. 1, 2 and 3 only, या फिर D. none of the above. आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशंस की तरफ, देखते हैं क्या होंगे इनके सही आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ऑफिस ऑफ विप से रिलेटेड था, ठीक है, जहां पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला ये कहता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस ने जो है वो बनाया है, और दूसरा कहता है रूलिंग पार्टी जो है सिर्फ वो विप रख सकती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे जो हैं ये गलत हैं। तो हमारा आंसर यहां होगा नीदर वन नॉर टू। क्यों? क्योंकि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड है विप के बारे में और ना ही रूल्स ऑफ बिजनेस में। और दूसरी जो चीज है वो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के पास ही विप हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी यही कहता है डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। और जो ऑफिस है विप का वो मेंशन जो है वो नहीं है, कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या रूल्स ऑफ द हाउस में, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के अंदर। हालांकि इट इज बेस्ड ऑन दी कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और दूसरी चीज की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन में हो वो विप रख सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है पॉलिटी का, ठीक है, उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए बोथ 1 and 2, क्योंकि रिटन रूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट भी लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, और ये बताता भी हमें कि हमारे सिटीजन्स के क्या राइट है। और तीसरी चीज एस्पिरेशंस की भी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी यही कह रहा है डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, जो रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में निर्धारित करता है, एक जनरेशन ऑफ ट्रस्ट देता है, कोऑर्डिनेशन की चीज लाता है जो कि नेसेसरी है सभी के लिए एक सोसाइटी में रहने के लिए। और ये स्पेसिफाई भी करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वगैरह के बारे में, ठीक है। और डीपीएसपी, प्रियम्बल, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि भाई क्या हमारे जो अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स में क्या है वो पता हमें चलता है। डीपीएसपी से हमें पता चलता है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कैसे लिमिट लगाई जा सकती है पावर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो तमाम चीजें जो है यहाँ से हमें पता चलती हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा बिल से रिलेटेड था कि बिल जो है वो पास होता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, द गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है कि इफ अ बिल सेंट बाय द गवर्नर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज पास्ड अगेन विदाउट अमेंडमेंट्स, गवर्नर इज अंडर नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गिव हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। मेरे हिसाब से तो 1 ओनली होना चाहिए। जी हाँ, 1 ओनली ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब एक बिल गवर्नर के पास, when a bill is sent to the governor after it is passed by the state legislature, गवर्नर या तो उस पे असेंट दे सकता है, या अपना असेंट रोक सकता है, या रिटर्न कर सकता है, और या फिर बिल को रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो उस केस में हमारा जो ये था कि अंडर नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उसको देना ही पड़ेगा, ये एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही क्लाइमेट फैक्टर्स जो हैं हमारे प्रेशर और विंड सिस्टम, कॉन्टिनेंटैलिटी, ओशन करंट्स, ये तीनों के तीनों ही अफेक्ट करते हैं किसी एरिया के क्लाइमेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 and 3। देखते हैं सॉल्यूशन भी यही कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि 6 मेजर कंट्रोल है किसी भी क्लाइमेट के, किसी भी रीजन के। क्या क्या? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। तो इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, क्योंकि साइक्लोन्स थे हमारे अभी आसपास, ठीक है। कुछ ही टाइम पहले न्यूज में जो है चल रहे थे। देन टॉर्नेडोज भी हमने एक दिन कवर किया था, राइट। तो मतलब लाइक इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारा है यूएन कन्वेंशन से रिलेटेड, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, यहां पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आप में से बहुत लोग इस इनकरेक्ट को नजरअंदाज कर देंगे, या आपका ब्रेन नजरअंदाज कर देगा और आप जो है करेक्ट पे ढूंढने लग जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ जो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे दिए हैं ना, ये तीनों ही हमारे सही हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आएगी
कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे या इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो हमें लगेगा अरे ये तो तीनों ही सही हैं और पूछा भी हमसे सही होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे आंसर लगा देंगे। लेकिन ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि मेजरली पॉलिटी सेक्शन से थे, तो पॉलिटी स्पेशल हम इनको कह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हमें यही कह रहा है डी, क्योंकि कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसको आप डिटेल में पढ़कर भी देख सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ मजा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है, बस आपका समय चाहिए हमें, और आप हमारे थ्रू इन चीजों पर मास्टर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.